Hello guys, welcome back to the channel. I am Ananya, currently a second year MBBS student at Monday Institute of Medical Sciences. So in my last video, some of you messaged me and commented to make a video on NEET strategy. How did I crack NEET in my first attempt? So in this video, I'll be sharing all the things that I did that helped me to crack this competitive exam in the very first attempt. So let's begin. Okay, yes, the very first point is study daily. Trust me, consistency is the key to crack any competitive exam. You have to study daily irrespective of anything. I understand some days it is like difficult, we feel tired, or maybe we are not well, or we feel upset. That time we do not feel like studying. But study something, do not waste the entire day. Even let's say you study for 7 hours a day, that day you study 3 hours, 4 hours, or just 2 hours, but study something. Do not waste your entire day. It keeps you in that process or in that flow of studying regularly. If you are not in the most active state of your mind, so do not study something new. Revise the previous topics, revise the previous chapter, or solve pyqs, solve some paper that had happened in your coaching, or some previous paper that you had attempted, or solve your doubts. Do something. Do not waste your day. Study daily. Even that day, study a little lesser from the regular schedule, but study something. Second, very very important, don't skip classes. I had seen in my preparation time many of my batchmates used to like skip classes when they had some exam in their like school, or some exam we had in our coaching institute. Many students did not attend the classes that day. Trust me, it's the most foolish thing you can do in your preparation time. You have to attend all the classes in your coaching institute. You cannot skip any class, trust me. Because if you skip that class, उस क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाया होगा वो तुम्हारा हमेशा के लिए वीक हो जाएगा. सो यू डू नॉट हैव टू क्रिएट बैकलॉग. उससे क्या होगा, मे बी तुम्हारा नेक्स्ट इमीडिएट पेपर में यू विल स्कोर वेल बिकॉज यू हैव स्किप्ड द क्लास. बट जो नेक्स्ट पेपर होंगे जिसमें वो टॉपिक आएगा, या फर्दर जो भी पेपर होंगे, तुम्हारा बैकलॉग बनता जाएगा एंड देन योर मार्क्स विल डिटोरेट. तो ये चीज़ नहीं करनी है. हमारा गोल द नेक्स्ट इमीडिएट पेपर इन आर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है. हमारा गोल है टू स्कोर गुड इन नीट. नेक्स्ट पेपर में भी अच्छा स्कोर करना है और नीट में भी अच्छा स्कोर करना है. सो डोंट स्किप क्लासेस, अटेंड रेगुलरली. इफ़ यू आर वेरी अनवेल और कोई हेल्थ इशू है, तो वॉट यू कैन डू इज़, अब आफ्टर कोविड क्या होता है, हमारे इंस्टीट्यूट में क्या होता था, ऑनलाइन क्लासेस यूज टू साइमल्टेनियसली ऑपरेट विद द ऑफलाइन वंस. तो अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो यू कैन स्टे एट होम फॉर 1 डे एंड अटेंड द ऑनलाइन क्लास, बट डोंट स्किप क्लास. थर्ड, एज आई सेड, डोंट क्रिएट बैकलॉग. व्हाट हैपन्स इज, जब हमारा कोचिंग में कोई एग्ज़ाम आ रहा होता है तो हम कम्प्लीटली उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं, और उस टाइम पे जो कोचिंग में टॉपिक्स चल रहे होते हैं हम उसको नहीं पढ़ते हैं. तो हमारे नेक्स्ट पेपर में तो नंबर आ जाएंगे, बट जो टॉपिक चल रहा है वो बैकलॉग बनता जाएगा और वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा. फिर नेक्स्ट पेपर में तुम नेक्स्ट पेपर का पढ़ोगे, फिर अगेन एक बैकलॉग क्रिएट जाएगा. तो डोंट क्रिएट बैकलॉग. सेकेंड, नोट्स एंड MCQs. ये थोड़ा मैं सब्जेक्ट वाइज बात करती हूँ. बायोलॉजी ओनली NCERT. तुम्हें NCERT लिटरली रट जानी चाहिए, इज एम आर तक भी पता होनी चाहिए. बायोलॉजी में इट्स जितना रीड कर सकते हो NCERT उतनी रीड करो, और ढंग से रीड करो. 5-10 मिनट की हवा में रीडिंग नहीं देनी है. यू शुड कम अक्रॉस ऑल दी लाइन्स इन NCERT. और क्या होता है, NCERT में ना इमेजेस दे रखी होती है और उसके नीचे बहुत छोटा छोटा लिखा होता है, वो भी पढ़ो. NCERT में कुछ भी नहीं छोड़ना है. एंड यू विल सी NCERT के साइड में ना ऐसे बहुत सारा ब्लैंक स्पेस होता था. तो मैं क्या करती थी, जो भी नोट्स में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो NCERT में नहीं है और जो इम्पोर्टेंट you feel like they are important, or your teachers tell you that they are important, तो मैं उसी ब्लैंक स्पेस में लिख लेती थी. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम बायो में सिर्फ NCERT रेफ़र करेंगे, तो NCERT में ही लिख लेती थी. तो मेरा NCERT और आउट ऑफ द NCERT एक साथ कवर हो जाता था. तो बायो में इट्स NCERT इज़ योर बाइबल. यू हैव टू स्टडी NCERT एट एनी कॉस्ट. सेकेंड, फिज़िक्स में बात करती हूँ. मैं क्या करती थी, जो भी क्लास में पढ़ाया है वो आके नोट्स रिवाइज करो एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस. वेरी इंपॉर्टेंट.
फिज़िक्स में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकता है। रोज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं वो प्रैक्टिस करो। PYQs जो मॉड्यूल में हैं वो सब प्रैक्टिस करो। MCQs लाइक वो ही सॉल्व करा पाएगा। इवन बायो में NCERT पढ़ने के बाद अगर तुमने MCQ सॉल्व नहीं करे हैं तो इट इज़ यूजलेस। बायो में भी NCERT 10 बार पढ़नी है तो 10 बार MCQ भी सॉल्व करने हैं, बिकॉज ये थ्योरी एग्ज़ाम नहीं है, ये MCQ एग्ज़ाम है। अगर तुमने MCQ सॉल्व नहीं किए तो थ्योरी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिज़िक्स हो, MCQ और क्वेश्चन सॉल्विंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री में अगेन मैं नोट्स जो भी सर लिखवाते थे नोट्स रिवाइज करती थी और क्वेश्चन सॉल्व करती थी मॉड्यूल से। केमिस्ट्री में आई टेल यू NCERT इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, बिकॉज जो करंट ट्रेंड है वो ये है कि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल और NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो केमिस्ट्री में भी यू नीड टू स्टडी NCERT, बट मैंने शुरू में NCERT नहीं पढ़ी थी। लाइक 12th में, मतलब जब लाइक मई में एग्ज़ाम होता है तो मैंने NCERT पढ़नी शुरू करी थी केमिस्ट्री की दिसंबर और जनवरी। तो आई हैड दैट 5 और 6 मंथ्स, उतना इनफ होता है, क्योंकि इनिशियली अगर NCERT पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं होंगे केमिस्ट्री में। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं नोट्स से, जो तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उससे। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन लगाओ, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, तुमसे क्वेश्चन बनने लगे, उसके बाद जब नीट में 5-6 महीने बचे हो, देन कम टू NCERT ऑफ केमिस्ट्री। एंड लेट मी टेल यू, एंड यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT इज़ रियली गुड। ये बहुत बच्चों को रियलाइज़ नहीं होता है, एंड में आके रियलाइज़ होता है जब टाइम नहीं होता है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT से लिटरली उठ के क्वेश्चन आते हैं, वो कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, सीधा वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। और आजकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो सिर्फ NCERT से सॉल्व हो सकते हैं। कितना भी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो फॉर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यू हैव टू रेफर NCERT ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ स्ट्रैटेजी क्या है, शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की NCERT नहीं पढ़नी है। शुरू में जो भी कोचिंग में पढ़ाया है नोट्स रिवाइज करो, मैकेनिज्म्स होते हैं वो समझो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। Wait towards the end, before like 4 or 5 months before your NEET exam, then start studying like NCERT of organic chemistry. It's really good. उसमें बहुत सारे theoretical points होते हैं, बहुत सारे कई बार order भी दिए हुए होते हैं, so, वो बहुत हेल्प करेंगे। क्वेश्चंस लिटरली डायरेक्ट उठ के आए थे मेरे नीट के पेपर में फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई कैन शो यू माई NCERT एज वेल। मैंने ये सिर्फ एंड में पढ़ी थी, बट इट्स एक्चुअली पूरा अंडरलाइन है। ये सब थ्योरी के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जैक्ट आते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगेन NCERT इज़ दी बाइबल, वो सिर्फ NCERT से करनी है, बाहर से नहीं करनी। फॉर फिजिकल केमिस्ट्री अगेन आई यूज टू स्टडी माई नोट्स, सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस। फिजिकल केमिस्ट्री में पूरी NCERT इंपॉर्टेंट नहीं है, सर्टेन टॉपिक्स होते हैं जो थ्योरेटिकल है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, वो तुम्हारे टीचर्स बता देते हैं, तो उसको NCERT से थॉरो रीडिंग देनी है। सेकेंड, डाउट सॉल्विंग। MCQ सॉल्व करा या कोई भी पेपर अटेम्प्ट किया, उसके बाद डाउट्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर डाउट्स रह जाएंगे तो पेपर अटेम्प्ट करने का, MCQ अटेम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गो टू योर टीचर्स, सॉल्व योर डाउट्स, उसके बाद घर आके उन्हें दोबारा सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके सॉल्व कराया और ख़त्म, नहीं। द वन थिंग दैट आई यूज टू डू इज़ पेपर, लाइक आज कोचिंग में पेपर हुआ एंड यू हैड सर्टेन डाउट जो तुमसे नहीं हुए या जो तुम्हारे गलत हुए हैं, टीचर से जाओ पूछो, उसके बाद घर आके दोबारा 2 घंटे बैठो और एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री तो दोबारा सॉल्व करो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि कई बार पेपर में हम एलिमिनेशन करके या कुछ करके आंसर दे देते हैं, वो कई बार सही भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है, बट घर आके पेपर सॉल्व करो, पूरा पेपर दोबारा सॉल्व करो। तो डाउट सॉल्विंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट डोंट रीड मल्टीपल बुक्स। नीट बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ के क्रैक नहीं होता है, वही 2 बुक्स होती हैं जो पढ़नी है, पर वो ही अच्छे से पढ़नी है। NCERT मस्ट है फॉर फिजिक्स ऑल्सो। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने लगे हैं, लाइक सेमीकंडक्टर से बहुत थ्योरी आती है, तो NCERT पढ़नी है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, अगेन कोचिंग मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करो, PYQs अटैम्प्ट करो, प्रीवियस नीट ईयर पेपर अटैम्प्ट करो, सिर्फ इतना इनफ है। बार बार यही करो। एक बार कोचिंग मॉड्यूल हो गया, 2 दिन बाद जब दोबारा करना है फिर से वही कोचिंग मॉड्यूल के क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। कोई नई बुक ला के अटैम्प्ट नहीं करना है, ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। लाइक HC वर्मा इज़ अ रियली गुड बुक,
बट वो नीट वालों के लिए बनी ही नहीं है। बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको लगता है कोचिंग मॉड्यूल हो गया, PYQ भी होगा, या दूसरी बुक से अटैम्प्ट करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है जो तुम कर सकते हो। सिर्फ NCERT के क्वेश्चन, कोचिंग मॉड्यूल के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये ही 3 चीज़ बार बार करनी है। 10 बार अटैम्प्ट करो और ये ही 3 अटैम्प्ट करो। डोंट गो फॉर अदर बुक्स, दैट्स द मेजर डिस्ट्रैक्शन यू कैन हैव। नेक्स्ट, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर स्लीप शेड्यूल। पूरा सो, मैं तो पूरे 7 घंटे सोती थी, 7-8 घंटे, मतलब सोने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट मेंटली एक्टिव, तुम अपना रेस्ट ऑफ द टाइम ढंग से स्पेंड नहीं कर पाओगे। मतलब हो सकता है तुम 4 घंटे सो, पर जितना तुम पढ़ रहे हो तुम्हारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन उस 4 घंटे में एफिशिएंसी 1 घंटा ही आ रही है। बेटर है तुम 8 घंटे सो जाओ और फिर बचे हुए 8 घंटे जितना ही पढ़ो। सेकेंड, इट माइट साउंड वेरी रूड, बट 12th बोर्ड एग्जाम्स पे किसी को ध्यान नहीं देना है। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जो 12th बोर्ड एग्जाम्स पे इतना ध्यान दे देते हैं कि नीट को दे स्टार्ट इग्नोरिंग, और उनका फिर एंड में जाके रिजल्ट हैम्पर होता है, और समटाइम्स दे इवन डू नॉट गेट सिलेक्टेड। ट्रस्ट मी, 12th बोर्ड एग्जाम्स डोंट मैटर। ये बहुत बड़ा टैबू है, पता नहीं कितना। और मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो तुमको टेंशन भी नहीं होगी 12th बोर्ड एग्जाम्स की। तुम्हें पता होगा ना कि तुम 11th-12th पढ़े हो, तो बोर्ड एग्जाम तो तुम ऐसे ही दे दोगे। तो वो कॉन्फिडेंस कि हम बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे याद है मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे और मैं तब भी नीट का ही पढ़ रही थी। इवन मैं 11th पढ़ रही थी उस टाइम, 12th पढ़ भी नहीं रही थी। तो ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम 2 साल रेगुलर पढ़े हो, तुम्हें पता है कि तुम बोर्ड तो ऐसे ही निकाल लोगे, और बोर्ड में ऐसे कोई 99% लाने की ज़रूरत नहीं है। डोंट पे अटेंशन टू बोर्ड एग्जाम्स, डोंट इग्नोर नीट बिकॉज ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स February-March में होते हैं, नीट मई में होता है। तो वही हाई टाइम होता है फॉर योर रिविजन ऑफ 11th and 12th फॉर नीट। So don't pay attention to your board exams. Second very important thing that I have learned was blindly trust and follow your teachers. मैंने तो अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया था। मतलब उन्होंने जो कह दिया वो करना है, उसके बाद अपना दिमाग नहीं लगाना है। उन्होंने बोला ये क्वेश्चन या ये सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो करना है, उन्होंने बोला ये नहीं करना तो नहीं करना। सो ब्लाइंडली फॉलो योर टीचर्स, जो बोलें वो करो, वो बोल रहे हैं, वो जो स्ट्रैटेजी बताएं उसको इम्प्लीमेंट करो। मतलब उनको पता है, दे नो आंसर टू योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सो ट्रस्ट दैम, फॉलो दैम, एंड ऑल द बेस्ट।